with SOFCON India. I also welcome our Dean of Engineering and Technology, Dr. Sanjeev Kumar Gupta sir, and Dr. Veena Dhari ma'am, Professor Computer Science Department, Rabindranath Tagore University. I also welcome all the faculties and participants who joined this webinar on our language. I request Dr. Sanjeev Gupta sir to address to all the participants before we start with the webinar. Sir, please. Thank you, Abhishek sir. Thank you. And on behalf of the Rabindranath Tagore University, I also welcome all the participants, faculty members, especially our today's guest, Farooqi sir, Senior Software Engineer from SOFCON Private Limited. Dr. Veena Dhari Madam, Associate Professor from RNTU, Computer Science Department, Abhishek sir from TNP, and all the participants, I welcome. As you know that we all are gathered here to learn and discuss about the different aspects of our language. So nowadays, data science plays a very key role in research. R is the I think most popular language in the world of data science, and it is heavily used in analyzing data that is both structured and unstructured. So in our university also, we have organized lots of seminars before that also on R and other languages. So R is also very beneficial in the research, especially in the analysis and visualization tools of the data. So I think in today's seminar, जो भी अपने research scholars हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो है ये फ्यूचर में कह सकते हैं कि जो रिसर्च एरिया है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा. एंड as Farooqi sir told me that he will not discuss today lots of in a very theoretical way, but from the practical point of view he will discuss today. I request to Farooqi sir also that if he will not complete the details of today's कह सकते हैं आपकी जो भी आज सर बताने वाले हैं, we can also continue in the second or in the third lecture in future. So I hope that you all will learn today about the R language from the point of view, you can say from the engineering or from other department also, and hope that it is very beneficial in the future. So I think Abhishek sir, we can start. Or yes, you want yes, to wait yes, for someone? Sir, just start करते हैं sir, है ना? I start with the introduction of our guest and the profile sharing with all the participants, and then we start. Okay, Farooqi sir. I think I also request to Veena madam that she will continue, and she will also see about the question and answer session in the last. Yes. And, she will. Yes, sir. Okay. Okay. So thank you. Thank you, Sanjeev sir, for sharing your views on today's topic. Mr. M.M. Farooqi is having around 20 years of experience in the field of training, development, and industrial research. His qualification is Master in Computer Application and Management, MBA in Marketing. He works more than 5 years with as a technical head with Aptech Computer Education. He also worked with Reliance Jio as a data analyst, and he also worked 4+ years in academic institution in Bhopal, and currently associated with SOFCON India Private Limited as senior software engineer. And now I request Mr. M.M. Farooqi sir to start with the webinar. Sir, over to you. Abhishek sir. So first of all, I would like to say thanks to Sanjeev Gupta sir, Veena Dhari madam, and Abhishek sir for organizing this wonderful webinar. Without taking your much time, I would like to start with R language. Now in today's topic, we will see the importance of R and its features and its programmings, right?
Now today we will learn R programming language. So what is R? R है क्या basically? R basically is a statistical programming language and it is used for statistical and operation and data visualization, right? तो देखिए इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है R लैंग्वेज की. देखिए जैसे आप हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ये आपका जो सिनेरियो है ये एआई का है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी ज्यादा वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कोप है और एआई के थ्रू हम इस तरीके के सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और इस तरीके के रोबोट्स या इस तरीके की मशीन्स डिजाइन कर पा रहे हैं जो कि काफी हद तक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करें. तो जैसा कि एआई का मोटिव होता है, आपका एआई का मीनिंग ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस मींस कि द पावर ऑफ लर्निंग, द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, द पावर ऑफ कॉम्प्रेहेंसिंग, राइट. तो लर्निंग की जहां बात आती है और जहां आप बात करते हैं कि ऐसी कोई मशीन बनाना जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर सके, तो ह्यूमन बीइंग की जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, उसके कंपैरिजन में कोई आप मशीन्स डिजाइन करेंगे, तो मशीन जब आप डिजाइन करने जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग की जो सबसे एडवांस जो आपका जो पार्ट है वो है इंटेलिजेंसी. और इंटेलिजेंसी कंप्राइज होती है आपकी लर्निंग से और डिसीजन टेकिंग की पावर से या कंप्रेहेंशन से, ठीक है, इन सारी चीजों से आपका इंटेलिजेंसी मिलके बनी हुई होती है. तो जब लर्निंग की बात आती है तो एक जैसा कोई ह्यूमन बीइंग होता है तो वो अपने जन्म से लेके अपने आखिर वक्त तक अपनी लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, उसके आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है उन सब चीजों को न सिर्फ देखता सुनता है अपने सेंस ऑर्गन से, बल्कि उनको अपने अंदर स्टोर करके भी रखता है, ठीक है, उसको लर्न करता है. और लर्न करने के बाद फिर वो अपने फ्यूचर में जब भी उसे कोई काम करना होता है तो उसी डेटा का वो यूज करता है डिसीजंस लेने के लिए. तो जब हम बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि हम आर्टिफिशियल का जैसा मीनिंग है आपका नॉन नेचुरल, मैन मेड. एक इंटेलिजेंसी ह्यूमन बीइंग के पास होती है जो कि नेचुरल कहलाती है, कि उसके पास नेचुरल एबिलिटी है कि वो लर्न करेगा, स्टोर करेगा, डिसीजंस लेगा, ठीक है. और आपका आर्टिफिशियल का मीनिंग ये होता है कि हम एक ऐसी सिस्टम क्रिएट करें जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह मतलब लर्न कर सके, ह्यूमन की तरह फ्यूचर के लिए अपने डिसीजंस ले सके, इस तरह का हम सिस्टम क्रिएट करें. तो जब देखिए एआई का काफी वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर आपका एआई में फिर मशीन लर्निंग भी आती है, डीप लर्निंग भी आती है. तो इसके अंदर जो मैं आपको आर लैंग्वेज के ऊपर बताने जा रहा हूँ वो इसलिए बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर आपको जब आप एआई की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है डेटा एनालिसिस की. डेटा एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है आप उसको एनालाइज करके एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जो कि आपके लिए फेवरेबल हो, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो. तो जब हम कोई भी हम कहीं पर भी हो, हम अपने डेली लाइफ में बात करें या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात करें या अपने घर में बात करें, तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, हम उनको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट होता है हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं. तो आर लैंग्वेज बेसिकली आपका स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए है, डेटा एनालिसिस करने के लिए है, ठीक है. तो इसमें अगर जब आप डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस. तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपका आर लैंग्वेज यूज में आती है. और दूसरा इसका पर्पस है डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में विजुअलाइज किया जाए, ठीक है. तो इन दो पर्पस से आपका आर लैंग्वेज यूज में आती है. अब देखिए डेटा विजुअलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डेटा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में क्या होता है. पहले कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में आप लोगों ने हो सकता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, इंजीनियरिंग वगैरह में भी शायद स्टैटिस्टिक्स है कहीं ना कहीं, मैथमेटिक्स वगैरह में. तो उसमें डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, लाइक दिस, ठीक है. तो इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं. तो आर लैंग्वेज जो बनाई गई है वो स्पेशली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बनाई गई है. इसमें आपको प्री मेड लाइब्रेरीज मिलेंगी इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? यस यस यस.
तो जी सर। बेसिकली आर लैंग्वेज जो है आपका स्टैटिस्टिकल और ऑपरेशंस के लिए और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो स्टैटिस्टिकल के बारे में तो हमने थोड़ा सा समझ ही लिया कि स्टैटिस्टिकल क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन होता ये है कि अगर आपके पास कुछ डेटा है, रॉ डेटा है, और रॉ डेटा से अगर आपको किसी डिसीजन पे पहुंचना है, किसी चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको चाहे वो कितना भी छोटा डेटा हो, आपको कम से कम अपने माइंड में कुछ ना कुछ एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, एक एजम्पशन के लिए, एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए। जबकि विजुअलाइजेशन कर दिया जाएगा उसी डेटा का, तो उसमें होगा ये कि आप डायरेक्ट डिसीजन पे पहुंचोगे विदाउट एनी कंसर्न कि डेटा क्या था। मतलब आपको वहां पर डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर कि, हालांकि डेटा की जरूरत तो पड़ेगी विजुअलाइजेशन के लिए, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, जो कि विजुअलाइज डेटा को वॉच कर रहा है, उसको इससे पीछे मतलब नहीं कि उसके पीछे डेटा कौन सी है, बस वो आपका डायरेक्ट डिसीजन पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ सिटी के नेम्स हैं, उनके सेल्स के कुछ फिगर्स हैं। मान लीजिए कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये उसकी कुछ सेल्स के फिगर्स हैं। मुंबई की 300 है, चेन्नई की 150 है, दिल्ली की 175 है, लाइक ये कोई फिगर है हमारे पास। तो अभी इस फिगर को आपको समझने के लिए मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इन दोनों का टोटल करें तो चेन्नई और दिल्ली का दोनों का टोटल, ठीक है, तो अकेला मुंबई का जो सेल्स का फिगर है वो चेन्नई और दिल्ली के टोटल के बराबर है लगभग। अगर आप, ये एक बहुत छोटा सा फिगर है जो कि एक बहुत छोटा सा स्मॉल सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो हमें कम से कम इस चीज को कैलकुलेट करने, अपने माइंड में हमें इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, और फिर हम जाके इस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं कि चेन्नई और दिल्ली का जो ओवरऑल टोटल है, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे क्योंकि हो सकता है आपने इस फिगर को पहली बार देखा, क्योंकि मैं पहले से देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इस चीज को कि 150 175 करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों का टोटल 325, जबकि अकेले मुंबई का टोटल 300 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल दिल्ली और चेन्नई के टोटल के बराबर अकेले मुंबई का सेल्स का फिगर है। तो एक सिंपल से डिसीजन पे पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो एक ये तो बहुत छोटा सा डेटा हो गया। मान लीजिए हमारे पास काफी बिग वॉल्यूम में डेटा होगा, हेट्रोजेनियस वॉल्यूम में डेटा अगर हमारे पास होगा, तो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत मैनुअली अगर हम करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमारा आर लैंग्वेज यूज में आती है, जिसके अंदर हमारे पास फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम इन सारी चीजों को कैलकुलेशन काफी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास प्री मेड लाइब्रेरीज होती हैं, हम उन लाइब्रेरीज का अप्लाई करते हैं और हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखिए विजुअलाइजेशन की अपन बात कर रहे थे, तो अब अगर मैं इस टेबल की जगह पे अगर आपको ये चार्ट दिखाता हूं, अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूं, तो अब इस चार्ट को देखने से आप बहुत आसानी से, आपके पास मान लीजिए फिगर ना भी है, अगर फिगर ना भी है आपके पास, तो आप इस चार्ट को देख के आसानी से समझ सकते हो ये मुंबई का आपका सेल्स का फिगर है, ये चेन्नई का है, दिल्ली का है, वो मुंबई का जो फिगर है आपके दिल्ली और चेन्नई के टोटल फिगर के बराबर है। अगर मैं आपको टेबल शो नहीं कर रहा हूं लेकिन खाली डेटा दिखा रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं, तो विजुअलाइज करने से आपको ये जो पाई चार्ट है जो कि कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, जिसके अंदर आधा पोर्शन ऑलमोस्ट मुंबई ने ऑक्युपाई किया हुआ है और दिल्ली और चेन्नई ने मिलकर आधा पोर्शन ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इस फिगर को देखने से अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास डेटा क्या था, हालांकि इसके पीछे डेटा है इस चार्ट को बनाने के लिए, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि डेटा क्या था। आप इस चार्ट को देख के, इस विजुअलाइज्ड चार्ट को देखकर आप आसानी से इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि हमारा जो चेन्नई और दिल्ली का दोनों का टोटल जो है उसके बराबर मुंबई के अकेले का टोटल है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है डेटा विजुअलाइजेशन की। डेटा विजुअलाइजेशन से हम किसी डिसीजन पे आसानी से पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? सर जी जी, आप कंटिन्यू करिए ना सर, तो यहाँ तो ये आपका इस तरीके से आपका आर लैंग्वेज जो है स्पेशली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए और आपका डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है। ये इसके फीचर्स हैं कि डेटा एनालिसिस से आपको होता क्या है। अगर आप किसी आप
कोई भी आप अपनी डेली लाइफ में या आप अपने घर में या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर अच्छे काम के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और इससे आपको डेटा एनालिसिस से आपको ये सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। आपको ये आप चार्ट देख रहे होंगे, इसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन है, बेटर डिसीजन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो, बेटर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब आप स्टडी कर सकते हो, आप डेटा को कलेक्ट करके आप स्टडी कर सकते हो कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा मार्केट प्लेस क्या है, ठीक है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चीज डेवलप करनी है, हमें किस तरह का सेल्स करना होगा, किस तरह का प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है, ये सारे आपको डिसीजंस लेने के लिए डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ये एनाटॉमी होती है डेटा एनालिसिस की पहले हमारे पास डेटा होता है। डेटा मींस डेटा का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है। तो डेटा हमारे पास पहला होता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम डिसीजन पे पहुंचते हैं। और एनालिसिस करने में हमारे पास स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। तो आर लैंग्वेज में ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। आर लैंग्वेज स्पेशली डिजाइन की गई है आपके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ये आर लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। देखिए, सबसे पहले ये कि सिंपली एंड इजी लर्न लैंग्वेज है। जैसा कि अगर आप लोगों ने अगर स्टूडेंट से पाइथन अगर किया हुआ होगा तो पाइथन की ही तरह की लैंग्वेज है थोड़ी बहुत ये। और जैसा कि पाइथन में फीचर्स हैं कि डायनेमिकली टाइप पाइथन होती है आपकी, तो इसी तरीके से आपका आर लैंग्वेज भी डायनेमिकली टाइप्ड है। मतलब इसमें आपको वेरिएबल्स एडवांस में क्रिएट नहीं करने पड़ते, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, जैसा कि हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं आपका, चाहे वो डॉटनेट हो, चाहे वो हमारा सी लैंग्वेज हो, चाहे हमारा जावा हो, इन सब में हमें वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन करना पड़ता है। जबकि हमें आर लैंग्वेज हुआ या पाइथन हुआ, इनमें हमें वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर ये इजी टू लर्न लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्सेस, इसके रूल्स आपके इजी होते हैं। जैसा कि आप जब आप इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, आप इसमें कोड्स लिखेंगे, तो वो आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब यू नीड नॉट टू रिक्वायर एनी लाइसेंस और यू नीड नॉट टू पे एनी फीस, ठीक है। आप सिंपली इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है आपकी, ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन की गई है और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। वेरिएबल्स इन आर की इसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आप वेरिएबल्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब आपको वेरिएबल को पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्ट यहाँ वेरिएबल आपको लगाना है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, पहले आर लैंग्वेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इसको कहां से इंस्टॉल करेंगे। आप सिंपली डाउनलोड आर लैंग्वेज लिखते हैं अपने ब्राउजर में, तो ये आपको ये crane.r प्रोजेक्ट आपको ये वेबसाइट में लेगी, यहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं आर लैंग्वेज को। अब जब इसमें आप यहाँ पर डाउनलोड करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्जन्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके आर लैंग्वेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, आप सिंपली क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे, आपका आर लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब आर लैंग्वेज इंस्टॉल होने के बाद, जैसा कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आजकल मार्केट में आईडीई अवेलेबल होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आर लैंग्वेज का भी आर स्टूडियो, ये इसका आईडीई है, इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं नेट से और इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड आर स्टूडियो करते हैं तो आर स्टूडियो की आपकी वेबसाइट खुलेगी और इसमें आप
इसमें कई तरह के इसके वर्जन अवेलेबल हैं। आप फ्रीवेयर में जा सकते हैं और फ्री वर्जन जो इसका है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता ये वाला वर्जन जो करंटली यहाँ पर आपको लिंक आपको मिल रहा है डाउनलोड करने का, तो इसके लिए एक यहाँ पर बॉटम में ओल्डर वर्जन का ये ऑप्शन दे रहा है आपको, ओल्डर वर्जन ऑफ आर स्टूडियो। यहाँ से आप आर लैंग्वेज का ओल्डर वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, जो आगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो ये भी ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये आर लैंग्वेज है जो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करी हुई है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर इस तरह का आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है, जहां से आप आर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस इसमें पास कर सकते हैं या फाइल में जाके आप स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आईडी अवेलेबल है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो में भी आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप आर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कंसोल विंडो मिलेगी, प्रॉम्प्ट मिलेगा जहां से आप प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये जो प्लॉट विंडो दिखा रहा है यहाँ पर आपको ग्राफ्स वगैरह या आप जो डेटा को विजुलाइज करते हैं वो सारी चीजें यहाँ डिस्प्ले होंगी राइट बॉटम कॉर्नर में, और राइट अपर कॉर्नर में ग्लोबल एनवायरनमेंट दिखा रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट में मतलब ये कि जो आप मेमोरी यूज करेंगे आर लैंग्वेज के अंदर, जो आप वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट मिलती है। तो ये आपका आईडी है। इसके अलावा आप इसके अंदर भी फाइल में जाके न्यू फाइल करके आप आर स्क्रिप्ट आर की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आर लैंग्वेज में आप ये वेरिएबल्स को यूज करने का मतलब वैल्यूज को असाइन करने के रूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कि आप किस किस तरीके से वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। आप इक्वल्स टू सिंबल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, x इक्वल्स टू 25 करा जा रहा है, तो x आपका x वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी 25। तो इक्वल्स टू सिंबल का यूज भी असाइन करने के लिए होता है। इसके अलावा ये लेस देन और हाइफन सिंबल का भी यूज कर सकते हैं कि आप पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर लेस देन और हाइफन सिंबल का यूज करके उसके बाद वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। या इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि पहले आप वैल्यू लें, फिर हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल के बाद फिर वेरिएबल लगाएं। इस तरीके से भी आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कि जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू, इसकी कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी 10, तो ये एक वेरिएबल आपका यूज में आ गया जिसका नेम a है, वो वैल्यू है इसकी 10। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यूज ले सकता हूं। ठीक है, ये वेरिएबल्स क्रिएट करने का तरीका होता है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि c एलियास 50, इस तरीके से भी वेरिएबल क्रिएट हो सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वैल्यू दें आप, फिर वेरिएबल दें बाद में। यहाँ पर ये सिंबल आपको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर आप करेंगे तो इससे भी आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेटा ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, कैरेट सिंबल आपका पावर रेज करने के लिए होता है, डबल परसेंटेज रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स टू है, और इनका मैंने आपको यूज करके दिखाया है आपको। इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाने के लिए यूज में आते हैं।
डबल इक्वल्स टू सिंबल जो रिलेशनल ऑपरेटर है, ये बेसिकली टू ऑब्जेक्ट्स के इक्वलिटी चेक करने के लिए बेसिकली कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम ए और बी के ऊपर हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए फॉल्स, क्योंकि ये इक्वलिटी चेक करता है। इक्वलिटी चेक करने के बाद फिर ट्रू और फॉल्स में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि ए और बी की जो वैल्यूज है इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आपको बता रहा है। इस तरीके से और भी ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाने के लिए कर सकते हैं कि इफ b is greater than a, तो ये आपको ट्रू बता रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये बेसिकली आपकी कंडीशन का स्कोप बढ़ाने के लिए होते हैं। तो अगर आपको दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है तो उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इनमें से अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपको चेक करना है कि बी, क्या बी आपका ए और सी से ग्रेटेस्ट है, या ए आपका जो वेरिएबल है वो बी और सी से दोनों ग्रेटेस्ट है। तो इसके लिए आप चेक कर रहे हैं कि क्या इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए आपको सी चेक करना है, तो इस बीच में आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि A is greater than C, तो रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि आपका B से बड़ा है ना तो C से बड़ा। अभी हमने A को दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैंने A की वैल्यू कर दी फॉर एग्जांपल 20। अब मैं सेम कंडीशन दोबारा से दूंगा तब भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का जो यूज है, आप देखिए हमारा A जो है यहाँ पर ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि वो बी से तो छोटी है लेकिन सी से बड़ी है। जब हम यूज करते हैं तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को ट्रू चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर में क्या है, इसका रिजल्ट आपका यहाँ बीच में पाइप सिंबल लगाना होता है और के लिए। और में क्या करेगा कि दोनों में से एक को चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो भी ट्रू आ जाएगा, या अगर ए सी से बड़ा हुआ तब भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स में रेंज है और सबस्टेंस चेक करने के लिए बेसिकली परसेंटेज इन डॉट परसेंटेज होता है। तो ये किसके होते, आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं। किसी को वेरिएबल है उसकी आप रेंज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया ई, और ई को मैंने 1 से लेकर 10 तक की रेंज लेनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 1:10। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ई जो है इंडियन एरे क्रिएट हो गया बेसिकली, ये जिसमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज है। ठीक है, अब आप चाहे तो ई को यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, और आप ई को चाहे तो इंडेक्सिंग मेथड से आप यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक काम करते हैं, पहले ई को ओपन दोबारा से इनिशियलाइज करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 12 से लेके 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं लिखूंगा कि ई और स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई इंडेक्स देता हूँ, जैसे मैंने इसका इंडेक्स दिया 5th, तो 5th इंडेक्स से मतलब है 16। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स आपका 12 है, सेकंड 13 है, आपका थर्ड 14 है, और फोर्थ 15 है, और फिफ्थ जो है आपका 16 इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग मेथड से भी यूज कर सकते हैं। तो ये रेंज ऑपरेटर आपका कहलाता है, कॉलन, जिसके थ्रू आप कोई सिंपल सा एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट आपको फाइंड करना किसी सेट के अंदर, तो उसके लिए परसेंटेज इन परसेंटेज यूज में आता है। इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है ई, इसके अंदर क्या 21 एक्स करता है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 21 परसेंटेज इन परसेंटेज ई, क्या 21 ई में एग्जिस्ट करता है। तो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि फॉल्स आ रहा है, और 20 की पे अगर 21 की पे मैंने लिखा 20, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो एक तरीके से किसी सेट के अंदर किसी वैल्यू का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने आर लैंग्वेज में देखा कि आर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज में आती है,
वेरिएबल्स कैसे इसमें डिफाइन किए जाते हैं, साथ में इसके अंदर ऑपरेटर्स के बारे में अपने डिस्कस किया, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। अब इसके बाद जो सबसे जो एडवांस जो इसका फीचर्स है हमारे आर लैंग्वेज के, वो देखिए ये चीज हो सकता है आपने किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक ना देखी हो, वो इसलिए क्योंकि आर लैंग्वेज डिजाइन की गई है वो स्पेशली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स होती हैं आर लैंग्वेज में, जो कि अभी तक हमारे शायद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने नहीं देखी होंगी, ना सी में देखी होंगी, ना जावा में देखी होंगी। और इसमें से कुछ चीजें हो सकता है आपने पाइथन में देखी हो, लेकिन इसके अलावा और दूसरी चीजें, डेटा फ्रेम्स हैं, फैक्टर्स हैं, एरेज हैं, मैट्रिक्स हैं, ये आपने पाइथन में भी नहीं देखे होंगे। तो ये जो डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये सारी चीजें हमें आर लैंग्वेज में मिलती हैं। ठीक है, आप इन सारी डेटा टाइप्स की हेल्प से आप काफी डायनामिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा बेसिक डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर है, कैरेक्टर है, बूलियन, वो सारी डेटा टाइप्स एज यूजुअल रहेंगी हमारी आर लैंग्वेज में भी। लेकिन इसके अलावा ये सब एडवांस डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड, वो आर लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। तो अब देखिए इसका इसमें वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर्स आपका डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। वेक्टर्स कलेक्शन होता है डेटा टाइप्स का, डेटा आइटम्स का, जिसकी डेटा टाइप सेम हो। मतलब इसमें आप डिफरेंट टाइप का आप टाइप नहीं ले सकते। इसमें जैसे एरे होता है, ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू एरे। ठीक है, इसके अंदर आप जो है सेम टाइप का कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका यूज कैसा होता है, सिंटैक्स कैसा होता है कि आपको वेक्टर क्रिएट करने के लिए वेक्टर नेम डिफाइन करना होता है। फिर आप यहाँ पर इक्वल्स टू सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, या आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है, राइट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये लिखना होता है सी। सी जो है इसका की आपको सी नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हैं, वैल्यूज कॉमा से सेपरेट कर दूंगे, जितनी वैल्यूज आपको वेक्टर में डालनी हो, एन नंबर ऑफ वैल्यूज आप वेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो विदाउट कोड्स की आती हैं, और अगर आपके नॉन न्यूमेरिक्स हैं, अल्फाबेटिकल है, टेक्स्ट है, आप उसमें डबल कोड्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स आप नोट करते हो, इसको देखते हैं इसको किस तरीके से डिफाइन करता है। तो जैसा कि सिंटैक्स है कि पहले मुझे क्या डिफाइन करना है, पहले वेक्टर का नेम दे। तो वेक्टर का नेम जैसे मैंने दिया वेक्टर VTR1। VTR1 देने के बाद मैं पर असाइनमेंट लेस और हाइफन, उसके बाद फिर लिखूंगा सी, फिर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये आपने क्रिएट हो गया VTR1, जिसके अंदर वैल्यूज हैं 23, 21, 24, 16 एंड 27। ये आपका इस तरीके से वेक्टर, आप इस वेक्टर को प्रिंट भी कर सकते हैं। वेक्टर लिखेंगे आप, वैल्यू यहाँ पर आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये तरीका वेक्टर्स क्रिएट करेगा। अब इस वेक्टर में जैसे बात कर रहा था आपको कि इसमें आप सिमिलर टाइप की डेटा ले सकते हैं। तो अब अगर मैं कोई वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ कि वेक्टर 2, और इसके अंदर मैंने मान लीजिए वैल्यूज दी पहली मैंने टेक्स्ट वैल्यू दे दी, दूसरी मैंने न्यूमेरिक दे दी, थर्ड मैंने बूलियन फॉर्मेट दे दी, कैपिटल में ट्रू लिख दिया।
तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये वेक्टर क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे एनवायरनमेंट में जाकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी को डबल में एनक्लोज कर दिया है। इट मीन्स कि इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग ऑल द वैल्यूज इन कैरेक्टर फॉर्मेट। तो टाइप भी चेक कर सकते हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेट की वैल्यूज हो गई, मतलब आप वैल्यूज जो दोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर, क्योंकि एक तरीके का पेरेंट टाइप है डेटा टाइप, तो कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट कर देगा आपका वेक्टर। आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज वेक्टर में रख सकें। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेक्टर्स क्रिएट करने ऑप्शन में आएगा। ठीक है, आप वेक्टर के साथ थोड़ा बहुत कुछ हम देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। आप वेक्टर को, जैसे कि आपको कहीं प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो आप वेक्टर को कंप्लीटली भी आप वेक्टर का नेम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो वेक्टर की वैल्यूज को बाय नंबर आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2, ठीक है, तो 2 मतलब 21 सेकंड। इस तरीके से आप इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ये जो मेथड में आप देख रहे हैं ये स्लाइसिंग वाला मेथड है कि आप वेक्टर को चाहे तो बाय इंडेक्स नंबर भी आप एक्सेस कर सकते हैं उस वैल्यू को, या तो आप इस तरीके से स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग ये होता है कि सेकंड इंडेक्स से रीड शुरू करें और फोर्थ इंडेक्स रीड करें। तो सेकंड इंडेक्स से आपका 21, थर्ड इंडेक्स से आपका 24 और फोर्थ इंडेक्स से आपका 16। तो इस तरीके से ही आपने जब यहाँ पर लिखा 2 to 4, तो 2 से लेके 2 से स्टार्ट कर रहा है, 4 तक की वैल्यूज को आपको ये एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर के साथ परफॉर्म करने वाले ऑपरेशन से आप कर सकते हैं। अच्छा, आप वेक्टर की किसी इंडेक्स को री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको थर्ड इंडेक्स जो है जिसका वैल्यू 24, इसको आपको चेंज करना है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि वेक्टर 1 ब्रैकेट थर्ड इंडेक्स के अंदर ये थर्ड, और फिर इसके अंदर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कुछ वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दी है यहाँ पर 25, तो आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट में भी देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हुई। देख रहे हैं आप सभी लोग? तो इस तरीके से ये वेक्टर्स को अभी हमने देखा कि क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएट करने का ये तरीका होता है, वेक्टर नेम देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर सी लिखते हैं और फिर वैल्यूज जितनी हम n नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेथड भी है वेक्टर क्रिएट करने का। इसके अंदर मान लीजिए हम डिफरेंट टाइप की डेटा फीड कर रहे हैं अगर हम, तो ये वेक्टर तो क्रिएट करेगा लेकिन सभी की टाइप सिमिलर कर देगा ये, क्योंकि वेक्टर आपको अलाउ नहीं करता कि आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज वेक्टर में स्टोर करें। तो वेक्टर आप इस तरीके से अगर आप कोई वेक्टर क्रिएट करते हैं तो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा लेकिन इसकी टाइप चेंज हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी की टाइप चेंज हो चुकी है। ये क्लास एक कीवर्ड है जो कि डेटा टाइप चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आप क्लास के अंदर वेक्टर का नेम देंगे तो उसकी टाइप आपको बताएगा कि पहला जो वेक्टर 1 था उसमें क्योंकि कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं थी तो सभी न्यूमेरिक। जी बोले। ये स्क्रीन थोड़ा सर ऊपर वाला क्लियर कर दीजिएगा, नीचे वाला है ना पोर्शन दिख नहीं रहे, मतलब नॉट एबल टू विजिबल, मतलब सबको थोड़ा सा ऊपर का क्लियर करिए आप कोड को। हाँ हाँ अभी जी, ठीक है? हाँ जी सर, थैंक यू। ये आप नोट कर लें, स्क्रीन क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज के लिए Ctrl L पुश करते हैं कीबोर्ड से
तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। हालांकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ से ये आपको एक दिखा रहा है क्लियर ऑब्जेक्ट करके, ये ऑब्जेक्ट क्लियर करने के लिए होता है। या इसके अलावा अगर आपको एनवायरनमेंट क्लियर करना हो तो उसके लिए अलग चीज होती है। एनवायरनमेंट क्लियर करना हो और आपको ये वेरिएबल्स जो आपने डिफाइन किए हैं, तो उसके लिए आप rm ब्रैकेट में लिस्ट इक्वल्स टू ls ब्रैकेट में all डॉट नेम्स इक्वल्स टू q। ये चीज आप लिखेंगे तो इससे भी आपका एनवायरनमेंट क्लियर होगा। ये जो वेरिएबल्स डिफाइन किए क्लियर हो जाएंगे। इस कमांड को नोट कर लें, ये एनवायरनमेंट क्लियर करने के लिए होता है। जितने भी आपने वेरिएबल्स या आपने कुछ मॉड्यूल्स वगैरह डिफाइन किए होंगे एनवायरनमेंट में, मेमोरी में जो भी स्टोर होगा तो मेमोरी फ्लैश हो जाएगी। अभी फिर से अपन वेक्टर्स क्रिएट करते हैं। ये एक वेक्टर हमने क्रिएट किया, एक और वेक्टर ले लेते हैं। ये हमने दो वेक्टर्स क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए आप वेक्टर्स के साथ और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर को अंदर कोई आपको इंडेक्स ऐड करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। वेक्टर के अंदर इंडेक्स ऐड करना है, अगर आपको कोई वैल्यू कोई आइटम अगर आपको ऐड करना है, तो अभी जैसे हमारा वेक्टर 2 है जिसके अंदर हमारे पास 9 वैल्यूज हैं, हम इसके अंदर कोई 10th वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं VTR2 और फिर इंडेक्स नंबर देंगे। अब इंडेक्स नंबर ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें 9 इंडेक्सेस हैं, मान लीजिए मैं 11 इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करना चाहूं, तो चूंकि इसके अंदर आपके 9 इंडेक्स ही हैं और मैं 11th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो ये वैल्यू ऐड कर देगा आपका। और 10th इंडेक्स जो है आपका नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा, मतलब वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये आपका 11th इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर देगा। आप इसको प्रिंट करके देखें। आप एनवायरनमेंट में भी देख रहे हैं आप कि इसने क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए डॉट डॉट दिखा रहा है आपको, ठीक है। 11th आइटम आपको दिखा नहीं रहा, आप इसको प्रिंट करके देखें वेक्टर 2 को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 11th इंडेक्स पे 41 क्रिएट हो गया और 10th इंडेक्स ब्लैंक छूट गया, ठीक है। अब इसी तरीके से वेक्टर के अंदर आप अगर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है आपको, कि पहले आपको कोई दूसरा वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पर एक दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर करेंगे। और फिर यहां पर आप लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लिखेंगे आप सॉर्ट, SORT सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर आप वो वेक्टर देंगे जिसको आपको सॉर्ट करना है। तो जैसा मैंने दिया यहाँ पर VTR1,
ठीक है, तो ये VTR1 की वैल्यूज को सॉर्ट करके VTR3 यानी कि थर्ड वेक्टर में स्टोर कर देगा। आप देख सकते हैं कि VTR1 जो है इसकी वैल्यूज एज इट इज हैं जैसी थी, उसने थर्ड वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसके अंदर वो उसने VTR1 की वैल्यूज को सॉर्ट करके डाल दिया। अभी मैं वेक्टर 2 को दोबारा से इनिशियलाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। दो वेक्टर्स को अगर आपको मर्ज करना हो तो उसके लिए आप वेक्टर एक अलग नेक्स्ट वेक्टर लेना पड़ेगा जिसके अंदर वैल्यूज आपकी जाके सेव हो जाएंगी मर्ज होने के बाद। उसके बाद आप कमांड यूज कर सकते हैं मर्ज। ठीक है, मर्ज और ब्रैकेट के अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके वेक्टर्स के नेम देंगे। तो जैसे मैं वेक्टर 1 वेक्टर 2 को मर्ज करना चाहता हूं तो मैंने वेक्टर 1 कॉमा वेक्टर 2 कर दिया, तो आपका वेक्टर 4 जो है मर्ज हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको देखना चाहें तो वेक्टर 4 को प्रिंट कर सकते हैं। एक मिनट, मर्ज में ये मर्ज का थोड़ा सा मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, इसमें कुछ थोड़ा सा इशू है आ रहा है, ये पूरी तरीके से मर्ज नहीं कर रहा। फिलहाल अभी अपन ने यहां तक देखा है कि वेक्टर कैसे क्रिएट करना है हमें। वेक्टर के साथ कुछ ऑपरेशन अपन ने देखे कि इसके हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं या हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एलिमेंट्स और क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है लिस्ट। तो देखिए लिस्ट और वेक्टर्स एक तरीके से सिमिलर हैं, बस सिर्फ लिस्ट में डिफरेंस ये है कि आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जबकि वेक्टर में ये अलाउ नहीं करता। अभी तक मैं वेक्टर की बात करते हुए चल रहे थे, तो वेक्टर में मैंने आपको ये पहले भी बताया था, वीडियो में बताया कि वेक्टर के अंदर आप अलग अलग टाइप की डेटा को आप डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में कर सकते हैं। और लिस्ट का यूज कैसे करेंगे आप? लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है, लेकिन विच आर ऑल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, जिनकी डेटा टाइप चेंज हो सकती, एक दूसरे डिफर हो सकती है सारे एलिमेंट्स की। ठीक है, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? आप सिंटेक्स क्या होता है इसके अंदर, पहले आपको लिस्ट नेम बनाना होता है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के आपको लिस्ट कीवर्ड का यूज करना है। वेक्टर में आप यूज करते हैं सी, जबकि लिस्ट में यूज करना है आपको लिस्ट। उसके बाद आप वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आप वेक्टर्स में करते थे। अब देखिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं लिस्ट के लिए। आपने लिखा L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट, और यहां पर आपने लिस्ट डिफाइन कर दी 12, 15, 13, 11, 10। तो ये एक लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई। प्रिंट ले सकते हैं आप इसको, इस तरीके से प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लिस्ट में क्या एडवांटेज है कि आप जो लिस्ट क्रिएट करते हैं इसके अंदर आपके हर आइटम की टाइप एक दूसरे से डिफर हो सकती है। जैसे आपने लिस्ट क्रिएट करी और आपने यहाँ पर पहला आइटम आपने कुछ नेम ले लिया
टेक्स्ट ले लिया, दूसरा आइटम आपने न्यूमेरिक ले लिया, तीसरा आइटम आपने बूलियन में ले लिया। ठीक है, आपने लिस्ट क्रिएट करी। अब अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करके देखें तो आप यहां पर देख रहे हैं कि अजय आपका टेक्स्ट में है क्योंकि डबल कोट्स में एनक्लोज करके दिखा रहा है। आपका ये 23 आपका न्यूमेरिक दिखा रहा है, और ये 2 आपने कैपिटल लेटर में लिखा था, तो ये आपका बूलियन बन गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो गई, और जिसमें आप डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर की हेल्प से भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, लिस्ट को अगर आप इस तरीके से कहें कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपके वेक्टर्स का कलेक्शन आपका लिस्ट होती है, तो आप वेक्टर की हेल्प से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास वेक्टर्स डिफाइन होने चाहिए, और आप लिस्ट के अंदर वैल्यूज के पे आप वेक्टर का नेम देंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर मैं वैल्यूज के नेम, वेक्टर्स के नेम दे रहा हूँ, तो वेक्टर की हेल्प से लिस्ट क्रिएट हो रही है। अभी जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो सकता है आपने एरेज का यूज किया हो, तो एरेज भी आपका काफी कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं आपका, जिसमें आप सिमिलर टाइप के डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब एरेज में जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें एरेज जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब आप उसमें रो एंड कॉलम्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट और वेक्टर्स हैं, ये आपके मल्टी डायमेंशनल नहीं है एक तरह से ये भी। तो मल्टी डायमेंशनल के लिए आपको इसमें मिलेंगे एरेज, आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल होता है आपका। तो एरे क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स है, तो अभी हमने वेक्टर्स देखा, वेक्टर्स के साथ ऑपरेशंस देखे, लिस्ट देखा। ठीक है, अभी मैं आपको एरेज बता रहा हूं। ठीक है, तो एरेज जो है बेसिकली आपके मल्टी डायमेंशनल होते हैं आपके। तो एरे कैसे क्रिएट करेंगे आप? एरे क्रिएट करने का जो रूल है, पहले आपको एरे नेम देना होता है। एरे नेम देंगे हम। एरे नेम देने के बाद एरे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा हमें, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, एरे कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर हमें यहां पर सी लिख के वेक्टर्स पास करने हैं। ठीक है, और वेक्टर, 2 वेक्टर्स यूज करने होंगे हमें, वो ये वेक्टर्स पहले से डिफाइन करना होंगे हमें। फिर यहाँ पर कॉमा लगा के फिर डिम, ये भी एक कीवर्ड है, इक्वल्स टू करके फिर दोबारा सी लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पर एक हमें रो, कॉलम और नंबर ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो कॉपीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो ये इसका सिंटैक्स है कि पहले हमने एरे नेम दिया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हमने कीवर्ड का यूज किया एरे,
फिर हमने वैल्यूज पास करने के लिए दो वेक्टर्स का यूज किया है। ये वैल्यूज पास करने के लिए होगा, इसमें जो वैल्यूज हम एरे में स्टोर करना चाहते हैं तो वेक्टर के थ्रू पास की जाएंगी। दो वेक्टर्स क्रिएट करने होंगे और फिर यहाँ पर हम डिम कीवर्ड का यूज करेंगे और इक्वल्स टू लगा के फिर यहाँ पर हम सी के अंदर फिर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ कॉपीज डिफाइन करेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं VTR1 और VTR2। अब देखिए जब ये आपका एरे, पहले तो मैं इसको देख लेते हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा AR1 array1, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और एरे कीवर्ड का यूज किया। एरे कीवर्ड का यूज करने के बाद ब्रैकेट में गया, फिर मैंने सी लिख के फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मुझे यहाँ पर वेक्टर 1 और वेक्टर 2, ये दो जो अवेलेबल मेरे पास वेक्टर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, उन वेक्टर्स का यूज कर रहा हूं मैं। लगाया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा डायमेंशन इक्वल्स टू, फिर सी लिखा, फिर मैंने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम डिफाइन करने। तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए मैं 3x3 की कोई मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ कॉपीज में 1 दे दूंगा। वैसे आप नंबर ऑफ कॉपीज चाहे तो आप ज्यादा कर सकते हैं, 1 कर दूंगा। तो ये एक एरे क्रिएट कर देगा 3x3 की। और उसमें अब आपको ध्यान ये देने की बात होगी कि हमारी जो वेक्टर की वैल्यूज हैं 21, 28, 17, 28, 18, 41, 38, 27, 26, 58, तो इन वैल्यूज को कैसे अरेंज करेगा ये देखने की चीजें यहाँ पर। ये तो इसका सिंटैक्स है जो अपन देख रहे हैं कि एरे नेम दिया हमने, एरे कीवर्ड का यूज किया, सी के अंदर मैंने दो वेक्टर्स पास कर दिए, फिर कॉमा लगा के इसके डायमेंशन डिफाइन कर दिए, नंबर ऑफ कॉपीज डिफाइन कर दी मैंने। ठीक है, ये तो इसका तरीका होगा, इससे आपका वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वेक्टर क्रिएट होने के बाद अब ये जो वैल्यूज है ये किस तरीके से स्टोर कर रहा है? तो वैल्यूज इसको स्टोर करने के लिए जो रूल अपना यूज करता है वो क्या होता है कि ये आपके वेक्टर से वेक्टर 1 है आपका, ये आपका वेक्टर 2 है और ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मान लीजिए मैं 3x3 की कोई मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो वेक्टर जब आप एरे क्रिएट करते हैं तो एरे के अंदर ये दोनों वेक्टर्स को क्लब करके वैल्यूज को अरेंज करता है और उनमें से फिर 3 वैल्यूज को आपके मैट्रिक्स में, आपके एरे में स्टोर करता है। तो ये पहले क्या करेगा, इसको इस तरीके से क्लब कर लेगा। जैसे पहला आपका वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर उसके नीचे हो गया। आप इसमें से फर्स्ट 3 वैल्यूज को पिक करेगा और यहां पर लाके फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज को पिक करेगा और नेक्स्ट कॉलम में, तो कॉलम वाइज 3 वैल्यूज को कॉलम वाइज फिलिंग करेगा। इस तरीके से आपके एरे की जो वैल्यूज, वेक्टर की जो वैल्यूज है उसको हमारे एरे में एडजस्ट कर देगा। तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं कि हमारा वेक्टर था, हमारा VTR1 था ये और VTR2 था हमारा ये। तो इसने फर्स्ट 3 वैल्यूज उठाई 21, 28, 17, इसने फर्स्ट कॉलम में डाल दी क्योंकि हमारा 3x3 का आपका मैट्रिक्स एरे है। फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज होती हैं 24, 18 एंड 41। तो 24, 18 और 41 को नेक्स्ट कॉलम में डाल दिया उसने। फिर होता है हमारे पास 38, 27, 26, तो उसने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स एरे क्रिएट करे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? जी सर जी। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास डेटा टाइप है वो है आपके मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स भी एरे की ही तरह है। मैट्रिक्स में एरे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मैट्रिक्स में डिफरेंस और एरे में ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जब आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वो आपके वेक्टर की जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उसके मल्टीपल में ही होनी चाहिए। रोज एंड कॉलम से उसका जो डायमेंशन होगा वो आपका वेक्टर के मल्टीपल में होना चाहिए।
ठीक है, मैट्रिक्स इज सिमिलर विद अरेज, ओनली द डायमेंशन मस्ट बी इन मल्टीपल विद रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये डिफरेंस होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्रिएट करने का तरीका भी वैसा ही जैसा कि आपका एरे है। मैट्रिक्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे? मैट्रिक्स के लिए आप लिख सकते हो मैट्रिक्स नेम। मैट्रिक्स का नेम डिफाइन करना है आपको। फिर लिखेंगे आप मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिख के फिर आपको ब्रैकेट के अंदर जैसा कि आप एरे क्रिएट करते हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको वेक्टर देने हैं, वेक्टर 1 कॉमा वेक्टर 2। ठीक है, फिर सी लिखकर अब आपको यहाँ पर डायमेंशन कीवर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रो एंड कॉलम यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो देखते हैं मैट्रिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं हम अपने आर लैंग्वेज में। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं आपके, वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, और अब आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सिमिलर नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके सेम होने चाहिए। पहली चीज, आप जब मैट्रिक्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो अभी अगर आप इसके बेस पे मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे तो देखिए क्या एरर्स आ सकते हैं। मैट्रिक्स 1 आपने नेम दे दिया, आपने लिखा मैट्रिक्स सी और फिर वेक्टर 1 कॉमा वेक्टर 2, और बाहर आकर आपने लिख दिया रो आपने डिफाइन कर दी, आपने 4 कॉलम डिफाइन कर दिए 4। ठीक है, अब आपको ये बता रहा है कि आपका डेटा लेंथ 14 इज नॉट सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इसलिए आपका क्रिएट नहीं हो रहा है, मल्टीपल में नहीं है। ठीक, अगर आप 5 by 5 देते हैं, क्योंकि हमारा पहला मैट्रिक्स जो एरे वेक्टर जो है 5 का है, तभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड वेक्टर जो इसमें 9 एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वेक्टर को मैं रीडिफाइन कर देता हूँ। उसकी कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा वेक्टर 1 हो गया, ये हमारा वेक्टर 2 हो गया। अब देखिए आप मैट्रिक्स हमारी क्रिएट हो गई है। तो इसमें आपको ये चीज नोटिस करने की है कि हमारे एरे के अंदर वेक्टर के अंदर 5 एलिमेंट्स थे दोनों में, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी मैं यहाँ पर 5 यूज कर रहा हूँ। तो मैं अगर मैं मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहूं जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूं 6 तो ये नहीं वर्क करेगा। 7 दूं तब भी नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं 10 देता हूं तो करेगा काम। अगर मैं 10 दूंगा कर लेगा काम, या 15 करूंगा तब भी काम करेगा, क्योंकि वो हमारे वेक्टर के एलिमेंट्स के मल्टीपल में होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर अपन ने अभी तक आर लैंग्वेज में मैंने आपको बताया वेरिएबल्स डिफाइन करना या वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना देखा हमने। लिस्ट देखी हमने। वेक्टर्स में सेम टाइप के डेटा आइटम्स ले सकते हैं हम, जबकि लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के डेटा आइटम्स को यूज किया जा सकता है। फिर मैंने एरेज बताया आपको, आप वेक्टर की हेल्प से एरेज क्रिएट करते हैं। फिर मैट्रिक्सेस देखिए हमने। तो मैट्रिक्सेस में और एरेज में डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्सेस के अंदर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आपके वेक्टर्स के एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब वेक्टर के अंदर अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं तो आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है 3 by 3 का कर सकते हैं, या 6 by 6 का कर सकते हैं, या 9 by 9 का कर सकते हैं।
ठीक है, आप अगर एलिमेंट हमारे 3 3 है दोनों में, तो आप 2 बाई 2 की मैट्रिक्स या 4 बाई 4 की या 6 बाई 6 5 बाई 5 की ऐसी मैट्रिक्स क्रिएट नहीं कर सकते। आपको मैट्रिक्स ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो वेक्टर के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मल्टीपल में हो। और वैल्यूज असाइन करने का इसका रूल वही है जैसा कि आपका एरेज में था कि दोनों वेक्टर्स को क्लब करेगा, फिर वो 1 बाय 1 उनकी वैल्यूज को क्लब आपका स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अब अपन ने इसके अंदर चलते हैं, इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर के अंदर आपकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। वेक्टर में हमारी वैल्यूज जो हैं रिपीट हो सकती हैं, रिपीटेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। सर आप एक बार चैट बॉक्स देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स का कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ बस मैडम, थोड़ा सा एक, क्योंकि ये काफी वेक्टर के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेक्टर को अरे में यूज कर सकते हैं क्या, वैसा। मैं एक चीज लास्ट आपको चीज बता रहा था। हाँ, फैक्टर्स, तो अभी हमने वेक्टर्स देख लिया, लिस्ट देख लिया, मैट्रिक्स, एरेज देख लिया, फैक्टर्स। फैक्टर्स भी आपका वेक्टर की तरह ही होता है, और इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होंगी, वो यूनिक वैल्यूज लेता है। तो अब अगर मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है जिसके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, अब मैं से कोई फैक्टर क्रिएट करना चाहूँ, तो फैक्टर क्रिएट करने के लिए जो तरीका होता है वो फैक्टर लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लिस्ट या सी की जगह पे मैं फैक्टर लिखूंगा, और उसके बाद फिर देखिए फैक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, फैक्टर 1 असाइन किया मैंने इसके अंदर, और मैंने लिखा फैक्टर, फैक्टर लिख के फिर मैंने VTR4 डिफाइन कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं फैक्टर क्रिएट हो रहा है F1, और उसके अंदर वैल्यूज जो है आपकी, उसने जो रिपीटेटिव वैल्यूज थी उसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो एक ये चीज होती है। इसके अलावा इसके अंदर डेटा बेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटा फ्रेम्स होते हैं। तो डेटा फ्रेम्स करने के लिए भी हमें वेक्टर यूज करना पड़ता है। पहले हम वेक्टर क्रिएट करते हैं, तो जैसे हमारा वेक्टर है, डेटा फ्रेम बेसिकली डेटाबेस एक्सेस करने के लिए टेबुलर फॉर्म में डेटा को अगर हमें मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए आपका डेटा फ्रेम्स यूज में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई टेबल है हमारा, नेम हो गया, एज हो गई, और सिटी हो गई, इस तरीके से कोई टेबल है। इस तरह का कोई टेबल क्रिएट करना चाहता हूं मैं। तो इस तरह का कोई टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए 3 वेक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक नेम का, एक एज का, और एक सिटी का। ठीक है, तो मैं 3 वेक्टर्स ले लेता हूं। वेक्टर पहला मैंने नेम के लिए ले लिया, मैंने डिफाइन किया नेम, पहला नेम मोहन, दूसरा नेम सोहन, और एक 3 मैंने नेम्स डिफाइन कर लिए, और दूसरा मैंने एज के लिए ले लिया, थर्ड मैंने सिटी के लिए ले लिया। 3 वेक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं यहां पर। अब इसकी हेल्प से मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का जो रूल है वो आप देख लें कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे। डेटा फ्रेम के लिए आपको डेटा फ्रेम का नेम देना होता है, फिर लिखना होता है डेटा डॉट फ्रेम, और वेक्टर्स डिफाइन करने होते हैं। यहाँ पर आपको वेक्टर्स पास करने होते हैं, तो इससे आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। अब जैसे मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, नेम एज सिटी का, अब इससे मैं कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने डेटा फ्रेम का नेम दे दिया DF
ठीक है। और लिखा है यहाँ पर डेटा डॉट फ्रेम, ये आपका कीवर्ड है, इसको एज इट इज लिखना है। अब इसके अंदर मैं जितने वेक्टर्स पास करूंगा वो उस कॉलम्स के हिसाब से वो आपका डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। इसमें नोटिस करने की बात आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सारे वेक्टर में सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट वेक्टर में 3 एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड में, थर्ड में, जितने भी आप वेक्टर्स यूज करो उसमें सब में 3 एलिमेंट्स होंगे। या अगर 10 है तो 10 होंगे, 100 100, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। पहला मैंने नेम के लिए ले लिया, दूसरा मैंने एज ले ली, एज वाला वेक्टर डाल दिया इसमें, और तीसरा सिटी वाला डाल दिया। ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी। आप देखिए इसके अंदर थोड़ा सा अपन स्टैटिस्टिक्स पे आए थे, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी, इसलिए मैंने इसमें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। और ये काफी एडवांस चीजें हैं। इसके अंदर वेक्टर्स, लिस्ट, आपके एरेज, मैट्रिक्सेस और डेटा फ्रेम, जो कि आपके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। ठीक है ना? अब इसकी हेल्प से अपन कैसे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना होता। सिंपली इसकी लाइब्रेरी के फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मुझे आपका मीन क्रिएट करना है, स्टैटिस्टिकल मीन, अगर अरिथमेटिकल मीन क्रिएट करना है तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है मीन, और मीन के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, किसी वेक्टर को पास करना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी, मतलब मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर 4 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मैं इस वेक्टर 4 को इसमें पास करता हूँ तो इसका आपको मीन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, आपको मीन क्रिएट, आपको ये कैलकुलेट करके दे रहा है। इस तरीके से मीडियन क्रिएट करना है आपको, तो मीडियन लिखा आपने और वेक्टर पास किया, ये मीडियन आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आर लैंग्वेज के अंदर आप स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं, जैसे मैंने वेक्टर क्रिएट किया एक सेल्स के लिए, मान लीजिए सेल्स की फिगर के लिए ये वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज हैं, ये मुंबई की मतलब 3 सिटीज हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के फिगर्स हैं, उनको मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिगर्स लिए हुए हैं, तो ये मेरा एक वेक्टर है, सेल्स की फिगर को शो कर रहा है, और ये वो सिटीज हो गई, या ये जो मेरी ऑलरेडी सिटी पहले से क्रिएट की हुई है मैंने, इसी के ऊपर अपन देख लेते हैं। ये हमारी सिटीज है, भोपाल, इंदौर, पुणे। मान लीजिए इन्हीं के फिगर से, सेल्स के फिगर है। अब मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका विजुअलाइज करना है। तो इसको हमारे पास अलग अलग तरह के इसके अंदर ग्राफ्स होते हैं, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। पहला जैसे पाई ग्राफ है, तो पाई लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा पाई। पाई के अंदर पहले मैं इसके नेम्स पास करूंगा, सॉरी, पहले मैं इसके फिगर्स पास करूंगा, इसमें सेल्स, और फिर उसके बाद सिटी। देख रहे हैं आप, ये राइट बॉटम कॉर्नर में आपके पास ये प्लॉट में आपको दिखा रहा है, और ये वैल्यूज दिखा रहा है भोपाल का, इंदौर का, पुणे का। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फिगर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। प्लॉट यूज करना है, आप प्लॉट यूज कर सकते हैं। आप प्लॉट, आपने लिखा सेल्स, या बार प्लॉट यूज करना है आपको, आपने लिखा बार प्लॉट और सेल्स। तो इस तरीके से हम आर लैंग्वेज के अंदर डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए हमें कुछ ज्यादा कोड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, हम लाइब्रेरीज को अप्लाई करेंगे और हमारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, हमारा डेटा विजुअलाइज हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये आर लैंग्वेज आपका स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए, या डीप लर्निंग के लिए, या डेटा एनालिसिस के लिए यूजफुल है। तो अभी मैं ओवर करना चाहता हूँ मैडम को। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको क्वेश्चन एंड आंसर वाला विंडो दिख रहा है क्या, सेशन वाला? हाँ, कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस हो तो इसमें पूछ सकते हैं। हाँ सर, उसमें क्वेश्चंस है सर, आप एक बार देखिएगा। हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू वेक्टर, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। और can we create a matrix of 4x3 means unequal number of rows and columns, ऐसा create कर सकते क्या? डेफिनेटली मैडम, इसके अंदर आर लैंग्वेज में हम दूसरे एप्लीकेशन से भी हम एक्सेस कर सकते हैं।
हालांकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं उसको शो करूं आपको यहाँ पर। हाँ हाँ, तो मतलब अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अपन क्रिएट कर सकते हैं इससे। हाँ हाँ, ओके तो सर। सारी चीजें तो कर सकते हैं। ये आपका आर लैंग्वेज डिजाइन ही इस पर्पज से की गई है। हाँ ठीक है, हाँ तो हम डेटाबेसेस का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। डेटाबेस हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो तो हम उसका यूज करके उसका भी डेटा इसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका डेटा को यूज करके हम अपने स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह इसके अंदर यूज करनी पड़ेगी, हाँ कोडिंग कर हाँ। लगेगी इसके लिए। ओके सर। सर एक और है, आप डेटा को एक्सेल से मतलब वेक्टर में इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? जी डेफिनेटली कर सकते हैं मैडम। अच्छा, वो पूछ रहे थे हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एन एक्सेल फाइल टू वेक्टर। और थोड़ा सा उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी अभी बताने में यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर आप मतलब अपना मेल आईडी, मतलब आपका मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, देन दे विल आस्क द क्वेश्चंस, है ना नोट कर वहां लें पर। आप लोग, मैं यहीं पर ही आपको दे दे रहा हूँ FAROOQUI_DPL। ये मेरा याहू का मेल आईडी है, faruqui_dpl@yahoo.com। इसको आप नोट कर लें। तो अगर आगे आपको कोई टॉपिक्स कुछ करने हो तो आप इसमें मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। सर आपने अच्छा कहाँ लिखा था? हाँ फारूकी, ओके ओके, यहाँ पर सबको दिख रहा है। हाँ सर, कोई वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं क्या यहाँ पर आर पैकेज, मतलब इस पे यूज करके आर लैंग्वेज को? नहीं, आर लैंग्वेज में वेब एप्लीकेशंस के लिए इतने फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं है, उस पर्पस के लिए नहीं है। देखिए नहीं। आजकल जो ट्रेंड चला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके लैंग्वेजेस डिजाइन की जाती हैं। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए आप पाइथन वगैरह यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर ये एक बेस्ट आर पैकेजेस है, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, मॉडल ऑफ डेटा के लिए क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं अपन? बेस्ट पैकेजेस क्या हो सकते हैं आर के अंदर, लाइब्रेरी पैकेजेस वगैरह? आर के अंदर ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। अभी आप इसको नेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं वैसे। हाँ ठीक है, हाँ आपको जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उस सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, प्रीमेड लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। अभी हालांकि मैं खुद भी स्टैटिस्टिक्स का इतना ज्यादा मतलब वो डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ, हाँ आर हाँ। लैंग्वेज का मुझे है इसके अंदर। तो आपको स्टैटिस्टिक्स में जो भी आप करना चाहें, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब चीजों के लिए आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज मिल जाएंगी आपको। जी जी सर। सर ये बिग डेटा के लिए भी ये आर को यूज कर सकते हैं ना एनालिसिस करने के लिए? हाँ नहीं, देखिए बिग डेटा एक आपका हालांकि कोरिलेटेड है एक दूसरी चीजें, लेकिन बिग डेटा एक अलग चीज है। ठीक है, और आर लैंग्वेज बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए, हाँ हाँ, एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। का एनालिसिस करने के लिए आर लैंग्वेज है। और बिग डेटा एक अलग चीज है। वो बिग डेटा मतलब ये हो गया कि जैसा कि उसका नेम है बिग डेटा, बिग मतलब डेटा विच इज इन हेटेरोजेनस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, जो कि हाँ काफी बिग साइज में हो। हाँ तो बिग डेटा बेसिकली एक इस तरह का टूल है जिसके हाँ। थ्रू आप ऐसा ऐसे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि को एक्सेस करने के लिए आपका सिस्टम, आपका जो मेमोरी है आपके पास अवेलेबल, वो कैपेबल ना हो। ओके 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 तो ओके। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए बिग डेटा एक तरह का टूल है। तो उसमें आपको बेसिकली जो यूज करते हैं, जो उसका जो कंसेप्ट है वो बेसिकली वो ये है कि जो इंटरनेट पे हमारे पास सर्वर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम इंटरनेट पे सर्वर्स का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह यूज में आती है उसके अंदर फिर। तो वो बिग डेटा बेसिकली इस तरह के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम वो सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। जबकि मतलब वो बेसिकली डेटा को स्टोर, मेमोरी की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बिग डेटा यूज में होता है। अच्छा मतलब बिग डेटा का जो यूज है बेसिकली स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए आपका बिग डेटा यूज में आता है, जबकि डेटा एनालिसिस के लिए आपका आर लैंग्वेज यूज में आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर पाइथन एंड आर में तो सिमिलैरिटीज है क्या, डिफरेंसेस जी मतलब? डेफिनेटली आप देख रहे होंगे मैडम इसके अंदर कि हम्म, आजकल वैसे पाइथन और आपका या आर लैंग्वेज ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप बच्चों ने एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी होंगी तो उन्हें देखा होगा कि भाई लूप्स हो गए, आपके आपके एरेज हो गए, या आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, या आपके इनहेरिटेंस हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो गई, पैकेजेस हो गए, ये ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं समझता हूँ कि सिमिलर होते हैं। लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्पेशली ऐड कर दी जाती हैं, तो वो चीजें फिर हर जगह अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि आपके पाइथन के अंदर मान लीजिए वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह है, या आपका
मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, उसके अंदर भी फीचर्स दिए हुए हैं, जबकि वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ जी पाइथन जो है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, जबकि आप जावा के अंदर सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन अगर आप आर लैंग्वेज का कंपैरिजन करें तो सिमिलरिटीज आप देख रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको एडवांस में पहले ही बताया कि पाइथन भी एक डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरीके से आर भी इस तरीके की डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो सी या जावा वगैरह का तो उसमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है इंटीजर वेरिएबल है या कैरेक्टर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको हो तो उसको पहले से आपको प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना पड़ता है मॉड्यूल में, फिर आप उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जबकि आर लैंग्वेज पाइथन में आप डायरेक्ट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक you very much. It was indeed a very good and practically explained session. So हमारे मतलब पूरे क्लास में यहाँ पर है ना, some research scholars also available है ना, they want to use our language for their data analysis and visualization के लिए यूज करना चाहते हैं, एंड इसीलिए इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट किया। एंड आपने तो इतने अच्छे तरीके से उसको लाइव सेशन से मतलब एक्सप्लेन किया, हाउ टू यूज द डाउनलोड, कैसे करना चाहिए, कैसे मतलब, सो स्टूडेंट सभी ने एंजॉय किया इस सेशन को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सेशन, एंड थैंक्स टू डीन सर एंड अभिषेक सोटी सर, आर यू देयर? सर है क्या? यस मैम, आई एम हियर। हाँ ओके सर। यस। सो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मतलब वी आर वेरी थैंक्स फॉर दैट सर। अभी आगे सर और हम कुछ सेशंस भी करना चाहते हैं, मतलब कुछ और डेटा फ्रेम, मतलब CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये सब भी अपन अगर आप चाहें तो अपन दोबारा भी प्लान कर लेंगे, जिसके अंदर आप मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा कि क्या आपको चाहिए, तो फिर वो आपको डिलीवर कर दूंगा नेक्स्ट उसमें। हाँ जी 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 सर, है ना, नेक्स्ट सेशन हम आपको मतलब इन्फॉर्म करेंगे, एक रिसर्च स्कॉलर्स के साथ अपन रखेंगे, अभिषेक सर, है ना जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फारूकी सर, थैंक यू बीना मैम, थैंक्स सर, and thanks to all the participants who joined this webinar. हाँ सर, पार्टिसिपेंट्स को फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा आप लोगों को एक बार? Yes, we will share the feedback form to all the participants on their mail ID through which they registered, and after like as soon as we get the feedback we issue the e-certificate to all the participants. ठीक है सर, है ना, ओके, we will complete it, no? Okay, thank you. Thank you. अभिषेक क्लोज कर रहा हूँ मैं वेबिनार। हाँ रमन सर, इसको क्लोज कर दीजिए। थैंक यू फारूकी सर, थैंक यू रमन सर, थैंक यू।